Welcome, student. Today we will study Lane's law in electromagnetic induction. तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे. The direction of induced current of the induced current or the EMF in any circuit is such that as to oppose the cause that produces it. और फिर थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Induced EMF or induced current opposes the reason due to which it is produced. The law is based upon the conservation of energy. तो इसको आप नोट कर लीजिए. हाउ इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब हम इसका एक एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे. तो इसको क्लियर करने जा रहे हैं. This law is the law is based upon the conservation of energy. इसको याद रखना है. तो आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट. Induced EMF or current opposes the reason due to which it is produced. So whenever we have to apply the Len's law on the questions, तो हमें उस रीजन को फाइंड आउट करना है जिसके कारण करंट इंड्यूस हुई है. इंड्यूस करंट हमेशा उस रीजन को अपोज करेगी. अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं. अब देखिए, लेट मी टेल यू.
Now this is a magnet and this is a coil. Let this is North Pole, let this is South Pole. So when North Pole of magnet moves towards the coil, we know it very well. A North Pole is induced. A North Pole is induced and current flows in anti-clockwise direction. Current flows in anti-clockwise direction. तो अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, current flows in anti-clockwise direction. Why current is flowing in anti-clockwise direction? When North Pole comes nearer to the coil, a North Pole is induced in the coil, which opposes the nearer motion of the North Pole towards the coil. ये इसका रीजन है. तो देखिए, when North Pole of magnet moves towards the coil, so induced current flows in anti-clockwise direction to oppose the nearer moment of the magnet. तो अपोज तभी हो सकता है जब नॉर्थ पोल को पास आने से हम कैसे रोक सकते हैं? जब नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाए. तो ये जो इंड्यूस नॉर्थ पोल है, ये इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नियरर मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा. आगे और भी लिखना है हमें इसमें, इसको आप नोट कर लो. The repulsion between poles opposes the motion of magnet. और ये तब ऐसा तभी पॉसिबल है जब करंट फ्लोज इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इसको क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट. ओके, और आगे लिखेंगे एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन मूविंग द मैग्नेट is converted into electrical energy. इसीलिए हम कहते हैं the law is based on conservation of energy.
Similarly, when North Pole moves away, then current flows in clockwise direction to induce South Pole. The induced pole, the induced South Pole opposes the motion of magnet away from the coil. Away from the coil. इसको नोट कर लीजिए. तो इतना एक्सप्लेनेशन आपको लिखना चाहिए. So induced current always opposes the reason due to which it is produced. Here the current is produced due to the motion of magnet. So induced current always opposes the motion of magnet. In a short, in one sentence, we can say that induced current opposes the reason due to which it is produced. Here, the current is induced due to the motion of magnet. So it will oppose the motion of magnet. When North Pole comes nearer to the coil, a North Pole is induced to oppose the motion, nearer motion of the magnet towards the coil. And when North Pole moves away from the coil, the current induces South Pole. So to oppose the further movement of oppose the motion of magnet away from the coil. So induced current always opposes the reason due to which it is produced, and energy consumed in moving the magnet is converted into electrical energy. इसीलिए हम कहते हैं that law is based on conservation of energy. इसको नोट कर लीजिए. तो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन हो गया. तो इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट. अब हम पढ़ेंगे Fleming's right hand rule. Now we'll study the Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. If we stretch the right hand thumb, I will show you the right hand thumb and two nearby fingers perpendicular to one another. And the first finger points in the direction of
magnetic field, and the thumb in the direction of motion of conductor. Then the middle finger will point, इतना आपको लिखना चाहिए, will point in the direction of induced current. So you can, this is thumb and these are the two nearby fingers. V, velocity of conductor. Thumb gives the direction of velocity of conductor. And first finger, this is called first finger, which is nearer to the thumb, gives the direction of magnetic field, and the middle one, middle finger, will give the direction of induced current. So in short, you can say that VBI. V stands for velocity, B stands for magnetic field, and the middle finger gives you the direction of current, in direction of induced current. Again, velocity of conductor, thumb represents the velocity of conductor. First finger, which is nearer to the thumb, gives the direction of magnetic field, VB. B stands for magnetic field, and the middle finger points out in the direction of induced current, VBI. So note it down, and do you understand it or not? You can tell me. The law is very important and simple one also. Okay, you understand it. तो आप देखिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. So we must do. तो इसको क्लियर कर रहे हैं. देखिए, a rectangular coil enters a uniform magnetic field as shown in the figure. As shown in the figure. Find the direction of induced current in the coil. प्रोसेस का मैग्नेटिक फील्ड है.
ये इसका वेलोसिटी है v। अब हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालनी है। तो देखिए, अब इसका एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। When coil enters the magnetic field, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। The flux of coil, आप देखिए, increases, क्योंकि जब कॉइल एंटर करेगा, more number of magnetic lines of forces will cut the plane of coil. So due to increase in flux, an EMF is induced. And due to induced EMF, a current is induced which opposes the motion of coil. ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो इतना ये लिखना हमें आना चाहिए। अब देखिए, अब अपोज कैसे करेगी इंड्यूस करंट? Now this is a very important point, that how the induced current will oppose the motion of magnet. देखिए, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। Induced current will flow in such a way that a magnetic force will act on the coil. भाई ये तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ कॉइल, तभी तो अपोजिशन होगा। सो इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच ए मैनर दैट इट विल अप्लाई अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कॉइल, सो टू अपोज द मोशन ऑफ कॉइल। तो आप इसको लिखिए पहले। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको एक और चीज बता देते हैं, अभी पूरा लिखेंगे इसको। अब देखिए, आपने फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली। नाउ यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्रॉसेस की, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, आपका कॉपी का जो प्लेन है उसमें नॉर्मल एंड इनवर्ट। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के फिंगर को नॉर्मल एंड इनवर्ट रखिए। आर यू डन? उसके बाद आप जानते हैं कि थंब रिप्रेजेंट द फोर्स, तो थंब को फोर्स की डायरेक्शन में लाइए। ये देखिए, ये जो आपका आर्म है, ये सीडी आर्म लिख लेते हैं हम इसे। सीडी पे हमें अप्लाई करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें सीडी पे अप्लाई करना है। तो थंब लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, फोर्स लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है, तो थंब को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के फिंगर को क्रॉस करिए। आप करके देखिए इसे, डू इट, पहले करके देखिए और मुझे बताइए। कॉपी में करिए, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल एंड इनवर्ट, थंब को फोर्स की डायरेक्शन में रखिए, फिर करंट की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। आर यू डूइंग इट? आप कर रहे हैं इसे? डन और नॉट? ओके, देखते हैं। अच्छा किया, डू यू अंडरस्टैंड इट?
तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ये रही, ये देखिए। अब ये देखिए बड़ा टिपिकल चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसमें अभी हमें और चीजें लिखनी है, काफी चीजें हम लिखेंगे तो फिर इसको आसान बना देंगे। तो आर्म सीडी पे फोर्स हमने लगाया, तो हमने क्या लिखा, एंड ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ करंट इज इंड्यूस व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ कॉइल। आगे लिखेंगे हम, अगर आपने इसे लिख लिया है। इसको सीखना पड़ेगा आपको। तो अगली स्लाइड में हम लिखने जा रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। ओके, इंड्यूस करंट एक मिनट, flows in such a manner so that so to apply a magnetic force F which acts opposite to the velocity of coil. Now, by Fleming's left hand rule, the direction of induced current can be found. So, induced current flows in anti-clockwise direction. इतना स्टूडेंट लिखना पड़ता है। So, induced current flows in anti-clockwise direction. तो इस तरह से क्वेश्चंस को, तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। So we'll take this one example. With the help of this example, I will explain you all the possible methods of finding the direction of induced current. तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब सेकंड मेथड पे हम काम करेंगे। Okay, so I'm clearing it. इतना लिखना चाहिए एग्जामिनेशन में, स्टूडेंट लिखते नहीं है।
ओके, अब देखिए सेकंड मेथड पे काम कर लेते हैं। अब देखिए, बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, we can find the direction of induced current. Thumb V, first finger B, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल एंड इनवर्ड है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के फिंगर को कॉपी में नॉर्मल एंड इनवर्ड रखिए और थंब को राइट हैंड पे रखिए, क्योंकि कंडक्टर कहाँ जा रहा है? राइट में मूव कर रहा है। हमेशा उस आर्म पर फोर्स लगाना है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बाहर वाली आर्म पे फोर्स मत लगाइए। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करिए। V, thumb is kept in the direction of velocity of conductor. B, first finger, magnetic field, normal and inward. फिर आप देखिए direction of induced current is given by the middle finger. You can find it out. अप्लाई करके देखिए और मुझे बताइए। And tell me, apply the Fleming's right hand rule. आप अप्लाई करके बताइए कि अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। Did you apply? Okay. Keep the thumb in the direction of velocity. रखा आपने राइट में, और फर्स्ट फिंगर को नॉर्मल एंड इनवर्ट डालिए। तो मिडिल फिंगर से रिड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी। सबसे पहले थंब को राइट में रखिए और जो फर्स्ट फिंगर है उसको नॉर्मल एंड इनवर्ट कॉपी में अंदर की तरफ अप्लाई करके देखिए। आर यू गेटिंग दिस? जब आप इसको ये क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। Keep the thumb in the direction of velocity and finger. Magnetic field is of crosses. First finger should be normal and inward. करके देखिए, बताइए।
So this is very important to do, to understand it. Okay, are you able to do it or not? Fleming's right hand rule. Chat once more. थंब को राइट हैंड डायरेक्शन में रखना है. ओके, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करिए. ये थंब वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में रख दो, और ये जो फर्स्ट फिंगर है क्रॉस है, क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? नॉर्मल एंड इनवर्ट, नॉर्मल टू योर प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ट. फिर आपको अपने आप मिडिल फिंगर की डायरेक्शन समझ में आ जाएगी. तो ये सेकंड एक्सप्लेनेशन है. अब देखिए थर्ड एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाता है. अब हमें और भी कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी इसमें. देखिए बिफोर आई एक्सप्लेन यू, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए. दो चीजें. देखिए एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ करंट है क्लॉकवाइज. नॉर्थ पोल, साउथ पोल. एंटी क्लॉकवाइज डॉट, क्लॉकवाइज क्रॉस. जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है तो राइट हैंड पाम रूल से आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? नॉर्मल एंड आउटवर्ड. नॉर्मल एंड आउटवर्ड राइट हैंड पाम रूल हमने अप्लाई करा, और देखिए नॉर्मल एंड आउटवर्ड पाम दिखती है. और जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होती है तब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ट. नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ट. अब हम यही थ्योरी यहाँ पर यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे? देखिए व्हेन कॉइल, अगला पेज भी लगेगा, enters the magnetic field, the number of crosses increases. अब नंबर ऑफ क्रॉसेस इंक्रीजेस का मीनिंग क्या है? वो उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का नंबर जो नॉर्मल एंड इनवर्ड है
जो कॉइल के प्लेन को कट कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दोस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच आर कटिंग द प्लेन ऑफ कॉइल। तो एज द कॉइल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कॉइल के प्लेन को कट कर रही है वो इंक्रीज हो जाएंगी, नंबर ऑफ क्रॉसेस इंक्रीजेस। सो देखिएगा, ये दिस इज द बेस्ट वे ऑफ आंसरिंग। सो इंड्यूस करंट opposes the increase in crosses. So it produces dots. क्रॉस को कैंसिल करने वाला क्या है? डॉट्स। एंड फ्लोज इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। So this is the best way to explain it. क्रॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो बढ़ते हुए क्रॉसेस को कैसे रोकना है? डॉट्स प्रोड्यूस करेगी इंड्यूस करंट, जिससे कि इन क्रॉसेस की इंक्रीज को रोका जा सके। और जब डॉट्स प्रोड्यूस करेगी तो विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप इसे समझ गए हैं तो बताइए, फिर से चैट करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। क्रॉसेस बढ़ रहे हैं, वो क्रॉसेस, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कॉइल के प्लेन को कट करेंगे, जो कॉइल के प्लेन को कट करेंगे, उनकी नंबर इंक्रीज हो गई, उनकी नंबर इंक्रीज हो गई। अब इसमें चार तरह के एक्सप्लेनेशन हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। तो मैं आपको चारों एक्सप्लेनेशंस लिखवा देता हूँ और कैसे हम क्वेश्चंस को आंसर्स करेंगे, हाउ वी विल आंसर द क्वेश्चंस। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉसेस का मतलब हो गया नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मल टू द प्लेन एंड इनवर्ड। डॉट्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मल टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। ओके, शुड आई क्लियर दिस? इसको क्लियर करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके, तो देखिए, अब हमें चार तरह के नोट लिखने हैं। When number of crosses increases, the induced current opposes the increase in crosses
and produces dots and flows in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. तो ये तो रूल नंबर 1 हो गया आपका. अब रूल नंबर 2. When number of crosses decreases, the induced current opposes the decrease in crosses. And तो क्रॉसेस को कम होने से कैसे रोकेगी? एंड प्रोड्यूसेस क्रॉसेस एंड फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब जैसे देखिए, आपको ये एक एग्जांपल बता देते हैं. अब ये कॉइल क्या है? इट इज कमिंग आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. When coil comes out of the magnetic field, what happens? The number of crosses will decrease. ऐसा भी तो हो सकता है, when coil is coming out of the magnetic field, तो crosses कम हो जाएंगे. तो induced current will oppose the decrease in crosses and will produce crosses. So will flow in clockwise direction. Definitely will flow in clockwise direction. तो चलिए करते हैं, क्लॉकवाइज लिख देते हैं. ये देखिए, तो ये एक्सप्लेनेशंस बड़े क्लियर होने चाहिए. इसको आप नोट कर लीजिए. सीधे से हम क्रॉसेस और डॉट्स की हेल्प से बहुत जल्दी इन सब चीजों को लिख सकते हैं. So whenever you note it down, you tell me. तो बहुत अच्छा मेथड हो गया. अब हम इस मेथड से बहुत आसानी से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज द बेस्ट टू अप्लाई. और यहाँ फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है वो इस आर्म पे लगाएंगे, which is inside the magnetic field. Okay, so are you done? तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं. ओके, अब देखिए, पॉइंट नंबर 3. When number of dots, देखो क्लियर है, when number of dots
increases, the induced current opposes the increase in dots. So it will produce, अब डॉट्स को कैसे, डॉट्स की इंक्रीज को कैसे रोकना है, सो इट विल प्रोड्यूस, आप खुद सोचिए, इट विल, डॉट को कैंसिल करना है, सो इट विल प्रोड्यूस, व्हाट इट विल प्रोड्यूस, क्रॉस. And flows in clockwise direction. तो ये देखिए, ये आपका बेसिक टेक्निक है, आप इसे लिख सकते हैं. पॉइंट नंबर 4, when number of dots decreases, the induced current opposes the decrease in crosses. So induced current produces crosses. Oh, sorry. So induced current opposes the decrease in dots. I am very sorry. Decrease in dots. Dots है ये. तो dots को decrease होने से, so it induced current produces dots. Induced current क्या produce करेगी? Dots. And will flow in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. तो अब आप इसे नोट कर लीजिए. ओके, इसको क्लियर करने जा रहे हैं. देखिए आप एक क्वेश्चन करेंगे. A closed conducting loop is placed in a uniform magnetic field as shown.
ये आपको करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड में है और क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, magnetic field is increasing with time, is increasing with time। मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए इसका आंसर भी लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रॉसेस इंक्रीज होंगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रॉसेस इंक्रीज होंगे। इंड्यूस करंट क्रॉसेस की इंक्रीज को अपोज करेगी, और क्रॉसेस की इंक्रीज को कैसे अपोज करेगी? इट विल प्रोड्यूस डॉट्स। तो आंसर विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। भाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस डिक्रीज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, डिक्रीजिंग विद टाइम। तो क्रॉसेस कम हो रहे हैं, क्रॉसेस कम हो रहे हैं, तो इंड्यूस करंट क्रॉसेस के कम होने को अपोज करेगी। तो वो क्रॉसेस को कम होने को कैसे रोकेगी? वो खुद क्रॉस प्रोड्यूस करेगी। सो द आंसर इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So note it down and tell me whether you have understood it or not। तो ये बहुत इजी तरीका हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके, आपको समझ में आ गया ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हेन फील्ड इंक्रीजेस द फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज, सो इंड्यूस करंट विल अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स। एंड जो मैंने बताया डॉट्स और क्रॉस के भी ऐसे भी एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So this is about the Lenz law. We'll do some number of questions on Lenz law and we'll start with the self-induction. Then we'll have mutual induction.